Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about 5 clear messages that you are meant to hear right now. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't works, then you can even pick your pile according to your date of birth. But सबसे पहले intuitively ही कोशिश करना अपनी पाइल को पिक करने की. एक कार्ड एक पाइल आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, then pick your pile according to your date of birth. So pile 1, we have the healing card. We see a girl and a bear. Pile 2, we have a bird, it says happiness. Pile 3, ये growth card है, we see a beautiful lady and some mushroom I guess. So ये इन 3 में से किसी एक कार्ड से अगर आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो, सो वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल ईजिली पिक कर सको. सो यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज, और उसके बाद देखो कौन सा वो एक कार्ड है. ज़रूर एक कार्ड होगा जो आपको अपनी तरफ बुला रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. इफ़ यू वांट टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस समय पर, तो अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the bear spirit. It says healing, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, और या फिर अगेन इंटुइटिवली पिक करा. लेट्स गेट स्टार्टेड. 5 क्लियर मैसेजेस दैट पाइल नंबर 1 मेंट टू हियर राइट नाउ. तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स आपकी करंट एनर्जीज़ के बारे में, 1-2 कार्ड्स करंट एनर्जीज़ के बारे में पुल करेंगे. सो पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज़. Okay. We have the 6 of Wands. All right. It's a beautiful card, to be honest. It is a very positive card. Then we have 2 of Coins. All right. I feel that you want to win something. All right. You want to clear something. You want to win something. Many of you guys can be students and you guys have some competitive exams to give, and you really want to win. You really want to overcome your challenges. You really want to score well. If you're in a job or business kind of scenario, I really feel that you want to achieve something big in life. Right now you feel that I need to do this. At the same time, you do not have that टाइम, लाइक यू फील कि टाइम जो है भागा जा रहा है और समय नहीं है मेरे पास चीज़ों को करने के लिए. टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है. मैनी ऑफ यू में डील विद सम फाइनेंशियल क्राइसिस राइट नाउ. ऑल राइट, सो सच थिंग्स आई सी. ये कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट को शो कर रहा है. मे बी समवन इन योर फैमिली और फ्रेंड सर्कल, they had some big victory recently, or in the past few weeks they achieved something big, they got something big in their life, and now you're also expecting the same कि मेरे साथ भी कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो, कुछ मैं भी बड़ा अचीव करूँ.
So this is the energy. So we have the magician here. The first clarity which is coming for you, pile number 1, is it's that you are the magician. You have everything in your hands. You have your destiny in your hands. You are the one who's going to create miracles. So have that trust, have that faith on yourself that you're going to do well. Although यहाँ magician कार्ड ये शो करता है कि आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप miracle क्रिएट करो, हर वो रिसोर्स है, या आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल हमें केक बनाना है तो केक का हर एक इंग्रेडिएंट है. यू हैव फ्लावर, यू हैव बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लाइक एवरीथिंग यू हैव. यू जस्ट हैव टू combine them together and voila, you have a cake in front of you, a fresh cake. So same goes with you, pile number 1. You have everything. You have the brains, all right. You have the ability to achieve something, to do something. So सिर्फ और सिर्फ क्या हल्का सा आप जो हो आपके अंदर एक हल्की सी एक जो कमी है वो है कॉन्फिडेंस की. वो है कि मैं अपने ऊपर एक फेथ, अपने ऊपर एक ट्रस्ट, उसकी यहाँ पर कमी नज़र आ रही है. तो गाइडेंस ये है कि अपने आप को कम मत समझो किसी से. आप कम बिल्कुल नहीं हो, आप सभी से बहुत ज़्यादा हो. आप में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जो दूसरों में नहीं है. ऑल राइट. सो आप कुछ वंडरफुल ही करते हुए नज़र आ रहे हो. बट मेन जो गाइडेंस यहाँ पर है, हैव ट्रस्ट, have faith on yourself. All right, you have everything. All right, you have everything in your life to perform miracles. You have every ingredient. All right. Then we have Emperor, such a powerful card. Pile 1, such a powerful card. Emperor को अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट, अपने ऊपर बहुत फेथ होता है. एम्परर जो है एरीज एनर्जी है. एरीज जो है मोटिवेशन है. एरीज जो है इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स. ऑल राइट, इट्स नॉट रियली अबाउट थिंकिंग. एरीज इज अबाउट टेकिंग एक्शन. सोचना था, समझना था, वो हो गया. इट्स नाउ द कार्ड सेज यू नीड टू टेक एक्शन राइट. इफ यू आर थिंकिंग कि मेरे को भाई ये काम करना है और यू आर लाइक कि कब करूँ, तो अभी करो. ये गाइडेंस है, अभी करो. ये गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एंड यू रियली डिज़ायर दैट विक्ट्री. यू रियली वॉन्ट नेम एंड फेम इन योर लाइफ. यू रियली डिज़ायर दीज थिंग्स. You really want to provide a good life to your mother, specifically your mother or to some motherly figure. You want to provide a very good life to them. And two of points वही कि financial crisis are gonna end soon. ये भी एक clarity है. बट बाकी जो emperor card है ये guide करे take action, take your step. Now it's the time to take step. Now it's not the time to think. It's about ये अभी समय आ गया है action लेने का. This is the second clarity which is coming in. Also plan करो, of course प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो. जैसे एम्परर जो है वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एम्परर वॉर लड़ता है और ऐसे ही थोड़ी ना चला जाता है वॉर जोन में, ऐसे ही थोड़ा ना चला जाता है युद्ध भूमि पर. वो पूरा प्लान करता है, स्ट्रैटेजाइज करता है. अदरवाइज़ तो सारी सेना जो है वो शहीद हो जाएगी. फिर ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे किंगडम थोड़ी ना चलता है. प्लान करता है राजा, स्ट्रैटेजाइज करता है. वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचता है. वो चाहता है उसकी प्रजा खुश रहे, उसके राज्य में हर कोई सेटिस्फाइड रहे. तो यू आर ऑल्सो समवन जो संतुष्ट करना चाहता है. आप संतुष्ट रहना चाहते हो और संतुष्ट करना चाहते हो. सेटिस्फैक्शन आप ज़रूर चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको मिलेगी. बट हियर द थिंग इज़, द सेकेंड क्लैरिटी इज़ ऑल्सो अबाउट कि भाई यू हैव टू डू समथिंग. कोई और आपके लिए आकर चीज़ें नहीं करेगा, आप ही को हर चीज़ करनी है. एरीज मैंपन है, सेल्फ की राशि है एरीज, कि मैं करूँगी, मुझे करना है. आई हैव टू डू इट, नो वन एल्स इज़ गोना डू इट, आई हैव टू डू इट. और आपसे बेटर कोई कर भी नहीं सकता है. पाइल 1. सो ये भी आपके लिए गाइडेंस है, इंफॉर्मेशन है. एंड इट्स अ टाइम टू रेज योर वॉइस, टेक सम एक्शन. अभी नहीं तो कभी नहीं. ऑल राइट. 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि आपके लिए एक और ये क्लैरिटी लेकर आ रहा है कि प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज भी करो. वैसे तो अब एक्शन लेने का समय है, एक्शन लो, और उसके बाद भी अपना प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग करते रहो कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या, और उसके प्रति एफर्ट साथ की साथ लेते रहो. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रही है. उसके साथ ही आप वो एक्शन लेते रहो.
And I would say कि you are gonna climb that social ladder or that corporate ladder soon. You are that person जो अपने परिवार का social as well as financial status जो है राइज करवाएगा. 3 of Wands यही शो करता है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, पाइल नंबर 1, वो करते रहो, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो जो भी काम है उसको करते रहो. अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ अब छोड़ देनी चाहिए, आई नीड टू स्टॉप दिस थिंग, नो. जो आप एक्शंस ले रहे हो ना, कीप ऑन टेकिंग दोज एक्शंस. आपको ये एक्शंस कहीं ना कहीं तो जीवन में पहुंचाएंगे. सो कीप ऑन टेकिंग दोज एक्शंस बिकॉज वो आपको एक हाइट पर ही लेकर जा रहे हैं. अगर आपको कुछ एक्शंस लेना मुश्किल भी लग रहा है तो कीप ऑन टेकिंग दोज एक्शंस, क्योंकि वो आपको एक हाइट पे, एक चोटी पर, एक एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं. जैसे एरीज साइन में ना चोटी को सिग्निफाई करता है. अब एरीज में सन एक्सॉल्टेड है, सन किंग को सिग्निफाई करता है, एम्परर को सिग्निफाई करता है. तो आपने देखा होगा कि जो किंग के पैलेसेस होते हैं वो प्रजा से अलग एक हाइट पर होते हैं. आप राजस्थान जाइए, आपको दिखेगा, आपको पता लगेगा कि जो पैलेसेस होते हैं राजा रानी के, वो हाइट पे होते हैं, चोटी पर होते हैं, सो दैट वो राजा अपने राज्य को देख पाए. और रीजंस भी बहुत है, और रीजन जैसे प्रोटेक्शन का रीज़न या जो भी, मतलब राजा जो है एक चोटी पर रिसाइड करता है, एक हाइट पर रिसाइड करता है. तो आप उस हाइट पर ही पहुंच रहे हो, यू आर क्लाइंबिंग दैट. सो वट एवर यू आर डूइंग, कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स. फोर्थ क्लैरिटी यहाँ पर 9 of Wands की है, जो कि ये 9 of Wands शो कर रहा है. जो टफ टाइम था लाइफ में, इट इज़ एंडिंग. इफ़ यू आर डीलिंग विद सम फाइट एंड आर्ग्यूमेंट विद इन योर फैमिली, विद योर फैमिली मेम्बर्स, सो दैट फाइट एंड आर्ग्यूमेंट इज़ अबाउट टू एंड 9 days from now. All right, and you are going to find support from your family members. But overall in general भी अगर हम बात करें तो लाइफ में जो एक बुरा समय था उसका अंत ये 9 of Wands शो कर रहा है. नंबर 9 is always about ending because it's very near to number 10. All right, then we have the Moon card. Last but not the least, ये क्लैरिटी एक ये भी आ रही है कि भाई अगर मदर कुछ हेल्थ इशू से डील कर रही थी, अगर मदर या इफ़ यू हैव एन एल्डर सिस्टर, अगर वो कुछ हेल्थ इशूज़, साइकोलॉजिकल इशूज़, मेंटल हेल्थ इशूज़ या फिजिकल हेल्थ इशूज़ से डील करी थी, तो अब जल्द ही उसमें रिलीफ आने वाला है. जल्द ही उसमें रिलीफ आने वाला है. इफ़ यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशूज़, साइकोलॉजिकल इशूज़, उसमें भी आपको रिलीफ आएगा. मून मदर है, मून मन है, मून फीमेल को सिग्निफाई भी करता है. तो फाइनली यू विल गेट क्लैरिटी दैट नो, आई एम सराउंडेड विद लव, आई एम सराउंडेड विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर मी. लाइक आई रियली फील पाइल 1 कि आप अपने आप को एट टाइम्स बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो. यू फील नो वन लव्स मी, नो वन केयर्स अबाउट मी. जो भी मैं काम करता हूँ या करती हूँ उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं. विच इज़ नॉट ट्रू पाइल 1, विच इज़ नॉट ट्रू. यू आर मेकिंग दिस थिंग अप इन योर माइंड कि भाई मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे काम की वैल्यू नहीं है. ऐसा नहीं है, आपकी वैल्यू है और आपके काम की भी वैल्यू है. पर हाँ, मैं एक बात जानती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड, कि लोग हमें इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमारे काम को जो है या हमारे प्रेजेंस को बहुत लाइटली लेते हैं. आई अंडरस्टैंड, बट दैट डज नॉट मीन कि उनको ये बात पता नहीं कि भाई आपकी लाइफ की वैल्यू है, आपके काम की वैल्यू. उनको रियलाइजेशन है, वो बोले या ना बोले, पर उनको रियलाइजेशन है that you are worth it, you are someone जिसका ज़रूरत है हमें. और आपके कहीं ना कहीं अब आपको अप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा, क्योंकि उनको ये एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रही है दैट आपके काम की वैल्यू है, आपकी वैल्यू. वैसे तो उनको रियलाइजेशन थी, बट नाउ दे आर ऑल्सो गोना रियलाइज़ कि भाई कुछ वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन बोल देने से हमारी कोई हाइट छोटी नहीं हो जाएगी. इनफैक्ट दूसरे को अच्छा ही लगेगा. पाइल 1 को अच्छा ही लगे, तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती. तो तारीफ़ मिलने वाली है, ये भी गाइडेंस है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, तारीफ़ मिलने वाली है. बट इफ़ यू आर डीलिंग विद दिस इमोशनल टर्मोइल दैट ओ माय गॉश, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मेरे को कोई मेरे काम को और या मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ये शिकायतें दूर होने वाली है. यू विल रियलाइज़ एंड अदर्स विल ऑल्सो रियलाइज़ कि आपकी एक अहमियत है, आपके काम की अहमियत है. आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट भी मिलने वाला है. सो दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या और गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स.
और जैसे आपने कार्ड पिक भी करा है हीलिंग का, चाहे आपने पिक करा हो या फिर आपने पाइल जो अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करी हो, व्हाटएवर इट इज़, हीलिंग कार्ड ये आपके रीडिंग का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 4 जो है कैंसर साइन, 4th हाउस, मून मदर को सिग्निफाई करता है, इमोशंस को सिग्निफाई करता है। तो इमोशनल हीलिंग वी कैन डेफिनेटली सी फॉर यू पाइल नंबर 1, इमोशनल हीलिंग स्ट्रांगली इट्स कमिंग टू यू। Something more, so we have the transformation. So transformation card is such a beautiful card because it shows that finally you're opening up, finally आप अपने आप में, अपनी सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल हो, you're opening up, you're coming out. If you know आपने कुछ चीज़ें अपने माँ बाप से, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड से छिपाई हुई थी, finally you're opening up, फाइनली यू आर टेलिंग देम कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, आप चीज़ अब छुपा नहीं रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक दैट आई एम नॉट रॉन्ग, सो वाई शुड आई हाइड इट। कोई गलत काम करता है, कोई गलती करता है तो छुपाते हैं ना, अदरवाइज़ कोई बहुत अच्छा चीज़ है तो उसको क्यों छुपाएंगे। तो फील लाइक कि बस मुझे अब कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि जो मैं हूँ या जैसी भी मैं हूँ या जो भी मेरे काम है वो बुरे डेफिनेटली नहीं हैं, एंड आई वॉन्ट टू कम in front now. I don't want to keep secrets from my family or with my friends. मैं जो हूँ मैं वो सामने आना चाहती हूँ. If you are someone who is interested in the other gender, in other sex, then if you're gay or lesbian, you're coming out to your parents or to your friends or whatever it is, all right, you feel कि it's the high time at this, but ये भी कार्ड ये शो करता है कि आप अब वैसे रहोगे जैसे आप हो, आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें नहीं करने वाले, आप जो नहीं हो वो आप शो नहीं करने वाले, आप वो ही शो करोगे जो आप हो। आप अब और कंफर्टेबल होने वाले हो अपने स्किन में, अपने आप में। यू फील कि भाई बहुत हो गया पीपल प्लीजिंग, बहुत हो गया कुछ और अपने आप को बनाना, जो मैं हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, और अगर कोई मेरे को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। इससे ये भी पता लग जाएगा कि कौन रियल दोस्त है, कौन रियल दोस्त नहीं है। So you're coming out. Then we have freedom card. Again, freedom is a card which is showing me that you feel कि भाई now I want freedom in my life, and you will get that freedom. और वो freedom of speech है, freedom of expression है, वो कोई भी चीज़ को लेकर आप बंधा हुआ महसूस करते थे, आप कहते थे कि ये मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता ड्यू टू दिस मैनी रीजंस, फाइनली वो रीजंस को आप साइड करते हो एंड यू गेट फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू। तो ये इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वर फीलिंग कि टाइम कंस्ट्रेंट्स है, आप फील करते थे मेरे पास समय नहीं है, मैं समय को मैनेज नहीं कर पा रही, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही, तो समय मेरी फ्रीडम को रोक रहा है, तो फाइनली आप अपने समय को मैनेज कर लेते हो, टाइम मैनेज कर लेते हो। बट जो भी चीज़ आपको रोकती थी, रुकावट लेकर आती थी, वो जो है रिस्ट्रेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, एंड यू आर एबल टू फ्रीली डू द थिंग्स विच यू वांटेड टू डू ऑलवेज। एंड योर फ्री विजडम कार्ड, आउल स्पिरिट। सो विजडम कार्ड ऑफ कोर्स हेयर गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू गाइज आर बिकमिंग मोर वाइज, यू गाइज आर बिकमिंग द पीपल जो कहीं ना कहीं दूसरों को ज्ञान देगा। ईगल स्पिरिट भी कहीं ना कहीं ये शो करता है, आप दूरदृष्टा, आप दूर की सोच कर चलते हो, आप फील करते हो भाई आखिर कितने दिनों तक मैं वो बन के रहूं जो मैं नहीं हूं, ऑलराइट, और इसका क्या नेगेटिव रिजल्ट मेरी लाइफ पर आ सकता है, आप सोचते हो, एंड देन यू कम आउट, देन यू लाइक आई वांट टू बी व्हाटएवर आई वांट टू बी, ऑलराइट, एंड यू आर रेजिंग योर वॉइस। एंड आउल स्पिरिट यही शो करता है कि आप ज्ञान जो हो, आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आप जो है दूसरों को ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हो। जुपिटर कैन भी आता हुआ घर का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज इन योर चार्ट पाइल 1, इट कैन बी जुपिटर। तो आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, आप कहोगे दूसरों के भाई मेरे को ज्ञान मत दो, मेरे को ज्ञान मत दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, पर तुम मेरे को ज्ञान मत दो, क्योंकि मुझसे अभी अपना ही नहीं संभल रहा ज्ञान, तो तुम मुझे अपना मत सुनाओ। आपकी अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी और आप उस फिलॉसफी पर अब चलते हुए नज़र आ रहे हो, ना कि लाइक यू आर डांसिंग ऑन योर ओन ट्यून्स, यू आर नॉट डांसिंग ऑन अदर पीपल्स ट्यून। आपको जैसे ज़िंदगी जीनी है वैसे ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दैट्स वंडरफुल। और आप बहुत ज़्यादा एक वाइज इंडिविजुअल हो,
आपका अपना दिमाग है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है, और वो बहुत अच्छा है, किसी को दुख तकलीफ देने वाला थॉट प्रोसेस नहीं है आपका. Then it says wait for winter. It says during the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. I did told you, pile one, you guys are the people जो सभी का भला चाहते हो, जो सभी का अच्छा चाहते हो. ऑल राइट, यू आर दोज पीपल. और जब या तो आप जब ठंडे इलाके में जाते हो, ऑल राइट, या जब आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ विंटर आती है, या एक ठंडे इलाके में जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी कोई होप विश डिज़ायर पूरी हो सकती है उस समय पर. ऑल राइट, देन वी हैव फाइंड बैलेंस. इट सेज द find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy and harmony and productivity in your life. Take a power nap. So ये guide कर रहा है ये वाला कार्ड आपको, pile number 1, that you guys need to take some power naps. all right, body जो है मशीन नहीं है. all right, इसको समय चाहिए रेस्ट स्लीप का. all right, so एक बैलेंस ज़रूर आपको करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क रेस्ट एंड प्ले टाइम का बैलेंस. ये 2 ऑफ पेनिकल्स कार्ड भी शो करता है कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ मैनेजमेंट नहीं है, और आप चाहते हो इस चीज़ पर आप वर्क करो और करते हुए भी नज़र आ रहे हो. बट ये ऐसे गाइडेंस कार्ड सेम यही आ गया कि बैलेंस ढूंढो. ये नहीं है कि सारा टाइम पढ़ते रहो, सारा टाइम काम ही करते रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं. एक रूटीन, एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. रूटीन भी छोड़ो, हर रोज़ एक अलग रूटीन फॉलो करो, बट वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए उसमें. सोने के लिए भी टाइम हो, एक नैप लेने के लिए भी टाइम हो, वर्क करने का भी एक प्रॉपर टाइम हो, है ना, खेलने का भी एक टाइम हो. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल राइट, फाइल नंबर 1. सो ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have the music card. It says bring yourself into divine harmony. Actually I was going to say कि जैसे वो play का चीज़ है, I was saying ना कि play time is also very important. So I was actually going to say about something about music कि भाई जो play time यानी जो आपको रिफ़्रेश करे जो चीज़. अब चाहे आपको लूडो खेलना पसंद है अपने परिवार के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना पसंद है, या म्यूज़िक सुनना पसंद है, जो भी चीज़ आपको रिफ़्रेश करती है वो चीज़ आपने ज़रूर करनी है. बट येस, दिस म्यूज़िक कार्ड डेफिनेटली गिव्स मी द स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू गाइज आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद म्यूज़िक. आप मेनी ऑफ यू गाइज विल बी द पीपल जिन्होंने अपनी एजुकेशन में म्यूज़िक लिया होगा, या जो लोग म्यूज़िक से सराउंडेड हैं, म्यूज़िशंस से सराउंडेड है, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स से सराउंडेड है. आप वो लोग हो. आप लोग अगेंस्ट धनिष्ठा, श्रावण नक्षत्र या श्लेषा नक्षत्र जो है आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो, या मघ नक्षत्र प्रोमिनेंट हो आपके चार्ट में. अगेन जो श्लेषा या मघ है वो कैंसर और लियो साइन में रिस्पेक्टिवली है, और जो श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र है वो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में है. सो ये साइंस आपके चार्ट में भी प्रोमिनेंट होंगे. यू गाइज कैन बी वेरी गुड सिंगर्स, कैन प्ले सम और लर्न सम music instrument in your life. You can have some music instrument at your home, at your place. You guys are very much connected to rhythm, very much connected to music. आप में से काफ़ी सारे लोग डांस में भी इंटरेस्टेड होंगे. आप डांस की जैसे जो गाने की बीट है ना, एक जो रिदम है गाने का, बीट है, उस बीट को फॉलो कर पाते हो बहुत अच्छे से, और उस पर बहुत अच्छा डांस कर सकते होगे. आप म्यूज़िक में बीट्स को समझ पाते हो, और उन बीट्स अकॉर्डिंग जो है वो अपना गाना गाते हो, ऐसे रिदम में गाना गाते हो, रिदमलेस नहीं होते हो. ऑलराइट, सो यू गाइस आर गुड एट दीज थिंग्स, और ये चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराती है, एट पीस महसूस कराती है. अच्छा, अगेन इन जनरल बहुत बहुत वंडरफुल फील करते हो जब आप म्यूज़िक, डांस, इन चीज़ों से, क्रिएटिविटी से सराउंडेड होते हो. सो सराउंड योर सेल्फ विद दीज थिंग्स. ये भी एक गाइडेंस है. ऑलराइट, फाइल नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी के लिए जैसा मैंने कहा, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये जो साइंस है प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपद. अगेन उत्तर आषाढ़ इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू वॉर्स एंड विक्ट्रीज, दैट्स व्हाई इट्स अ नक्षत्र.
रिलेटेड टू प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग थिंग्स. सो आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक का इन्हीं साइंस इन्हीं नक्षत्रस में प्लेस्ड होगा इन द और D1 D12 D9 या D10 दशांश चार्ट में इन्हीं साइंस में इन्हीं नक्षत्रस में आपके प्लांट्स भी अगेन ज़रूर प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. जुपिटर कैन बी आत्माकार का प्लानट. आत्माकार का वीनस भी हो सकता है बिकॉज वीनस भी म्यूजिक आर्ट्स को शो करता है. मरकरी भी हो सकता है आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. सो ये चीज़ है. मून कहीं ना कहीं 8th हाउस में हो सकता है या स्कॉर्पियो में हो सकता है क्योंकि मून का थोड़ा इशू नज़र डेफिनेटली आ रहा है. मून जैसा मैंने कहा इमोशंस है, मदर है. मून केतु के साथ हो सकता है. केतु मून का कंजंक्शन हो. केतु मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो. लेट्स से मून असेंडेंट में तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, मून 8th हाउस में प्लेस्ड हो या मून स्कॉर्पियो में हो. डेफिनेटली मदर को मेंटल हेल्थ इश्यूज शो करता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज शो करता है. और क्यों ये मेंटल हेल्थ इश्यूज है मदर और आपको? क्योंकि लाइफ टफ रही है. जैसा जैसा आप ज़िंदगी में चाहते थे कि हो वैसा वैसा नहीं हुआ और उसने आपको बहुत स्ट्रेस टेंशन दी और उस कारण वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. गाइडेंस ये है कि आप ज़्यादा अकेले मत रहा करो. विद मून केतु कंजंक्शन है, मून इन द 8th हाउस है, मून इन स्कॉर्पियो या मून ट्राइन फ्रॉम केतु. अकेले ज़्यादा मत रहा करो और लोगों के साथ अपना इन्वॉल्व रहो और बाहर ज़रूर जाया करो. अब कोविड भी नहीं है. अगर कोई ऐसे डिज़ीज़ अगर फैली हुई है तो ऑफकोर्स घर रहो. बट अगर सब नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो ज़रूर बाहर जाओ, नेचर में जाओ, पार्क में जाओ, इधर उधर घूमने जाओ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मून अफ्लिक्टेड जिसके चार्ट में वो इंसान अपना खुद का दुश्मन अकेले में बन जाता है. वो ऐसे ऐसे ख्याल सोचता है जो सच नहीं है और बहुत नेगेटिव में वो चला जाता है और सेल्फ डाउट में वो आ जाता है. तो गाइडेंस यही है कि टॉक टू समवन, कम्युनिकेट टू समवन और जल्दी सोने की आदत डालो क्योंकि हम रात को नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो. तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हम सो जाए समय पर. और इंट्यूशन आपकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करता है. इस तरह का प्लेसमेंट डेफिनेटली इंट्यूटिव आप ज़रूर होगे अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है. बट वही है कि मदर को चिड़चिड़ापन और हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देगा और मदर काफ़ी बर्डन रह सकती हैं कामों से, घर के कामों से या बाहर के कामों से, जो अगेन उनको स्ट्रेस टेंशन देता है. तो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटो एक दूसरे के साथ. फ्री करने की कोशिश करो. मदर को फ्री रखो जितना हो सके और उनको घुमाना फिराना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसी प्लेसमेंट्स के साथ बिकॉज ये नज़र आ रही है मून अफ्लिक्टेड. मिल्क प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ना डाइजेस्ट हो क्योंकि मून मिल्क प्रोडक्ट्स को सिग्निफाई करता है. मून 8th हाउस में हो गया. केतु को वो केतु एस्पेक्ट कर गया मून को, है ना, जो मैंने अभी प्लेसमेंट्स बताई मून की. तो मिल्क प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होगा तो अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट. उससे PCOS PCOD भी हो सकता है, उससे और डिजीजेस भी आ सकते हैं. यू आर नॉट समवन जिसको मिल्क प्रोडक्ट डाइजेस्ट होगा विद मून का अगर मून को मेलेफिक इम्पैक्ट कर रहे हैं तो या मून डेबिलिटेटेड है तो. That's the thing. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you were interested in these bracelets, if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the happiness cards, the bluebird spirit number 7, or you picked this pile because आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आता है किसी month के. Let's get started. 5 clear messages that you are meant to hear right now. सबसे पहले हम कुछ 1-2 कार्ड्स आपकी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट के बारे में पुल करेंगे. पाइल नंबर 2. Okay, we have 3 of wheels. It seems that you are quite busy
अभी भी और बिज़ी और कुछ टाइम पहले से काफ़ी बिज़ी आप चल रहे हो, या किसी चीज़ को आप परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो सो दैट यू गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर क्राफ्ट, सो दैट आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाओ. We have the Eight of Swords. So you have also been feeling quite melancholic, a little negative, or you're feeling that, oh my gosh, what is going to happen in the future? You're hopeful, but at the same time कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं fail हो जाऊंगी, या I will be a failure, I may not be able to achieve what I wanted to achieve in life. You're kind of like a little negative on the side. कहीं ना कहीं मन में नेगेटिविटी है ये कि भाई मैं कर पाऊँगी ये चीज़ें या नहीं कर पाऊँगा ये चीज़ें, ऐसा सिचुएशन, ऐसा फीलिंग है. ऑल्दो आप अपना बेस्ट देने में लगे हो, अपना बेस्ट कर रहे हो, अगर आप जॉब, एजुकेशन या करियर में जो भी हो, मतलब बिजनेस में हो, जो भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर गिविंग योर बेस्ट, ऑल राइट. एंड दैट मैटर्स, द एफर्ट्स मैटर. आप ये कभी मत सोचो कि आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता. जो भी आप कर्म करते हो उसका फल मिलता ज़रूर है, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर. बट you need to be more positive, all right. Pile number 2, think positive, ये guidance है. And you're not looking at the good things of life, you're looking at the negative things of life. So look at the things which you have already achieved, what you already have, because जो चीज़ें आपके पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. सो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान दो, ना कि नेगेटिविटी की तरफ. ये गाइडेंस है. क्लैरिटी, पहली क्लैरिटी क्या है? सो वी हैव द स्टार, बी होपफुल. पहली क्लैरिटी तो यही है कि बी होपफुल, बी पॉजिटिव, जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे. स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी होपफुल. ओके, अपने अंदर होप मत ख़त्म होने दो. ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है. अपने अंदर से होप मत ख़त्म होने दो, ऑल राइट. जो जुपिटर है वो होप का कारका है. अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करो. जुपिटर कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? नॉलेज लेकर, वाइज बनकर, कुछ धार्मिक गुरु मेंटोर को सुनकर, ऑल राइट. अपने गुरु से, अपने मेंटोर से गुड रिलेशनशिप रखो, नॉलेजफुल बनो, तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो, ये स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी होप बढ़ेगी आपके अंदर. ये गाइडेंस है. देन वी हैव द 6 of Swords. 6 of Swords is giving me this message that आपको अपना बचपन का ड्रीम नहीं छोड़ना. आपके कुछ बचपन के ड्रीम थे, वो आपके पूरे ज़रूर होंगे, और राइट, उनको छोड़ना नहीं, वो ज़रूर पूरे होंगे बचपन के ड्रीम्स, और उसके प्रति आप एफ़र्ट्स भी करो. ये गाइडेंस है. एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो, एक तरह से प्रेडिक्शन भी है कि आप एफ़र्ट अपने बचपन के किसी ड्रीम के प्रति कर रहे हो, और फिर वो ड्रीम कम ट्रू आपके लिए हो जाता है. सो ड्रीम बिग, ये एक गाइडेंस या ये एक क्लैरिटी है, ऑल राइट. समथिंग मोर, something more for pile number 2. We have the Queen of Wheels. Queen of Wheels is basically the Queen of Pentacles. So if you were dealing with financial crisis in your life, the Queen of Pentacles, the Queen of Wheels says कि अब ये ख़त्म होंगे, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी, मदर के साथ, मदरली फिगर के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा. इफ़ यू हैड अ फीमेल बॉस, तो उनके साथ भी रिलेशन इम्प्रूव होगा. इफ़ यू हैड ए फीमेल प्रोफेसर, टीचर, तो उनके साथ रिलेशन जो है अच्छा होता है, उनको आप इम्प्रेस कर पाते हो अपनी नॉलेज, अपने गुड स्कोर्स से, ऑल राइट. और आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो ख़त्म होते हैं, ये है. और अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम से डील करते हैं, मटीरियलिस्टिक इन द सेंस कि जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स घर को भी सिग्निफाई करते हैं. जैसे घर पे लेट्स से आपके पास जगह नहीं थी किसी चीज़ को रखने की, वो चीज़ बड़ी है, बहुत बड़ी है, और आपके पास घर में उसको रखने की जगह नहीं है, और आप उसे घर में रखना चाहते हो, तो फाइनली यू विल मेक अप स्पेस फॉर दैट. अगर घर की मैनेजमेंट में ट्रबल आ रहा था आपको कि मेरे को घर भी मैनेज करना है, मेरे को काम भी मैनेज करना है, मेरे को चिल्ड्रन की एजुकेशन भी मैनेज करनी है, मेरे पास मतलब बहुत सारे काम हैं, उनको मैं कैसे मैनेज करूँ, तो मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर आ रहा है, आप मैनेज कर पाओगे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ.
ऑलराइट। आपको अगर समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज़ करूँ, मतलब कौन सी चीज़ को पहले करूँ, तो ऑफकोर्स आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत अभी है उसको मेरे को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। जो चीज़ मैं बाद में भी कर सकता हूँ उसको मेरे को बाद में करना चाहिए। तो इन चीज़ों में भी आपको अगेन आपका मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, आपको क्लैरिटी आ रही है ये चीज़ों को कैसे मुझे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन, ऑलराइट, देयर इज़ लॉट्स ऑन योर प्लेट। तो भाई उसको कैसे मैनेज करना है उसका क्लैरिटी अब आपके पास आएगा। कोई मदरली फिगर या कोई फीमेल इन जनरल आपकी मदद कर सकती हैं, मदद आ रही है। मदद कब आ रही है? विद इन अ वीक, दैट्स अ गाइडेंस, ऐसे इन्फॉर्मेशन। देन वी हैव द 10 ऑफ व्हील्स। 10 ऑफ व्हील्स, प्रॉपर मैनेजमेंट, गुड फाइनेंशियल हेल्थ, फैमिली के साथ एक अच्छा संबंध, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा संबंध, या जिन लोगों को भी आप अपना परिवार समझते हो उनके साथ आपका एक अच्छा संबंध नज़र आ रहा है। आपको नेम फेम मिल सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ व्हील्स बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि अबंडेंस को शो करता है। अबंडेंस यानी भरपूरता की महसूसता। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है या चीज़ होनी चाहिए, ये फीलिंग नहीं होगी। आपको होगा कि आई एम कंप्लीट, आई डोंट वांट थिंग्स इन माई लाइफ एनी मोर, आई एम कंप्लीट। एक कंप्लीशन, किसी चीज़ को ऑफकोर्स कंप्लीट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ये भी है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, पर इन जनरल भी आप लाइफ में सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। जल्द ही ये आएगा, फीलिंग आएगा, ये आई एम सेटिस्फाइड। आप संतुष्ट रहोगे और संतुष्ट दूसरों को करोगे, सेटिस्फाइड होते हुए नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, सपोर्ट मिल रहा है परिवार से, ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। And we have the Hierophant. So Hierophant card, the fifth clarity which is coming for you, Hierophant again अच्छे गुरुज और मेंटोर्स को शो करता है। जैसे जुपिटर की बात कर रहे थे ना, तो हायरोफेंट भी जुपिटर को सिग्निफाई करता है। वैसे हायरोफेंट सैटर्न को भी सिग्निफाई करता है, एज वी सी अ ओल्ड पर्सन। बट क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का कारक है, सो दिस ओल्ड पर्सन इज ऑल्सो वेरी वेरी वाइज, ऑलराइट। सो हायरोफेंट ये शो कर रहा है कि आपको बहुत अच्छे गुरुज मेंटोर्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लेट्स से एक स्टूडेंट थे तो आपको यूट्यूब पर या रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बहुत अच्छा ट्यूटर मिल जाए, बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, ऑलराइट। अगर आप जॉब या बिजनेस में थे, अपनी बिजनेस स्किल्स या जॉब से रिगार्डिंग स्किल्स की इंप्रूवमेंट चाहते थे, तो कोई गुरु मेंटोर आपको मिलता है और उस चीज़ में आपको हेल्प करता है। और वो गुरु मेंटोर खुद एक परफेक्शनिस्ट होगा, अपने फील्ड का बेस्ट होगा, और आप उसके गाइडेंस में बहुत कुछ सीखोगे, ऑलराइट। अगर इवन जैसे हायरोफेंट आपके बेसिक जो हायरोफेंट वो टैरो का बेसिक जो डेक है राइडर वेट्स का, उसके अंदर हायरोफेंट में हम देखते हैं कि एक पोप होता है जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है चर्च का, है ना। उनके अंडर ही बाकी फादर्स और नन्स आती है। अगेन मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट जितना मेरे को पता है कि ऐसे ऐसे क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ चर्च है, उनकी बड़ी मान्यता है ना। तो कोई ऐसे ही किसी हाईएस्ट अथॉरिटी उनसे आप मिलते हो, उनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति है, या उनसे आपकी लाइफ में विजडम आता है, नॉलेज आता है, होप आती है, और आपकी लाइफ में बेटरमेंट होता है, आपकी लाइफ इजी होती जाती है, सारी मुश्किलातों को आप सॉल्व कर लेते हो, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। तो गुरु का साथ आपको मिल रहा है। अब गुरु तो कोई बुक भी बन सकती है, जैसे कई लोग जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ऐसी बुक्स को अपना गुरु बना लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बुक को अपना गुरु मान लो, या कोई तो है जो लाइफ में आता है आपकी और आपकी लाइफ में बेटरमेंट करता है, ज्ञान लेकर आता है। पर कहते भी हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ, है ना, गुरु होना ज़रूरी, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले, यूनिवर्स आपको और क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस देना चाहता है। और देखो, गुरु बिना सदगति भी नहीं, सदगति देने वाला भी, सदगति दाता भी गुरु है, सिखाता भी गुरु है, और सदगति भी कहीं ना कहीं गुरु से होती है। गुरु एक तरह से आप नॉलेज कह लो, तो नॉलेज आपके अंदर आती है। सच में कोई गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में एंटर करता है और उससे आप उनकी नॉलेज से आपका लाइफ में बेटरमेंट होता है। एंड वी हैव अनसर्टेनिटी। सो एज वी सी दैट यू आर दिस पर्सन, पाइल नंबर 2, यू गाइज आर into the jungle now.
आपने शुरुआत नहीं करी जंगल में, अभी आपने एंटर नहीं करा, आप ऑलरेडी जंगल में हो, ऑलरेडी उस जंगल में हो जहाँ पर जंगली जानवर हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। पर अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको पता हो कि ये रास्ता है जंगल से जाने का, इजी रास्ता है, इजी वे आउट है, या आपको पता है कि इधर कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, या ये जंगल सेफ़ है, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, तो आप इजीली उस जंगल से निकल जाओगे। पर अगर आपको पता हो कि भाई यहाँ जंगली जानवर है तो डर भी लगेगा घबराओगे भी, है ना। पर जब ये क्लैरिटी है कि इस रास्ते पर चलना है, कोई मतलब सही एकदम सेफ़ रास्ता है, पर ये बताने वाला कौन, कोई तो होगा बताएगा जो आपको कि ये सही रास्ता है, ये सेफ़ रास्ता है, ये रास्ता आपके लिए बना है ना, तो कोई वो बताने वाला ज़रूर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो अनसर्टेनिटीज़ थी लाइफ की, वो डेफिनेटली आपके लिए एंड हो रही है। अनसर्टेन टाइम्स आर एंडिंग इन योर लाइफ। आपको रियलाइज़ होगा कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। And we have grace. This grace card shows wise woman of the grove. So again, some wise guru mentor is coming. आपका जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो सकता है पाइल नंबर 2, या जुपिटर वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। लेट्स से वीनस असेंडेंट में, तो जुपिटर 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, तो जुपिटर गुरु मेंटोर है और वीनस फीमेल्स को सिग्निफाई करता है, तो आपकी फीमेल गुरुज मेंटोर्स होंगी। जुपिटर राहु का अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन है, जुपिटर राहु आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, तो आप पहली बात तो आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, अपने अंदर बहुत सारा विजडम आपके अंदर ऑलरेडी है। बट ये भी शो करता है द गुरुज मेंटोर्स यू गेट, दे मे नॉट बी फ्रॉम योर कास्ट, मे नॉट बी फ्रॉम योर कम्युनिटी। सो ये चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। कोई फीमेल आपको राइट गाइड करेंगी, it can be your mother or it can be someone else as well. Then we have ancient oak spirit, it says strength. So strength card here does shows कि आप में पावर आ रही है, आप में जो है आई वुड से हिम्मत आ रही है, करेज आ रहा है, आप ये फील करोगे आई एम नॉट अलोन, यू विल फील दैट स्ट्रेंथ ऑफ विजडम। ज्ञान की भी तो शक्ति होती है ना, ज्ञान से भी शक्ति आती है। जो अननेसेसरी फियर अनसर्टेनिटीज़ फील करता है वो ज्ञान से दूर हो जाता है, ज्ञान अनसर्टेनिटी का अंधियारा दूर कर देता है, तो वही आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है, आप स्ट्रेंथ फील करने वाले हो। देन वी हैव इक्वालिटी, इट सेज ट्रीट अदर्स विद इक्वालिटी एंड फेयरनेस, जस्टिस फॉर ऑल। तो फेयरनेस, जस्टिस, रिस्पेक्ट का कार्ड है, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है। यू विल फील दैट नो वन कैन बुली यू। अगर कुछ बुलीज थे आपकी लाइफ में तो वो बुली आपकी लाइफ से जा रहे हैं, आप स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो, तो आपसे कोई पंगा नहीं लेगा। आपसे बात करने से पहले भी दूसरे 10 बार सोचेंगे कि आपसे कैसे बात करनी है, कोई गलत शब्द ना मुंह से निकल जाए, तो पहली अपनी प्रैक्टिस करेंगे लोग लाइन आपसे बात करने से पहले। आप ऐसी पावरफुल पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हो और जस्टिस लाइफ में सर्व हो रहा है। And you are also going to serve justice to other people. Many of you can, of course, can be lawyers, can be working in government, can work in NGOs as well, doing something for the unprivileged. तो वो है। एंड इट सेज ड्रीम्स, तो मैंने शुरू में ही कहा ड्रीम बिग, और जो आपके बचपन के सपने उनको छोड़ो मत, क्योंकि आप उनके प्रति एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हो और उन ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो। इट सेज एम्बिशन, एस्पिरेशन, फुलफिलमेंट, फॉलो योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, दे आर विद इन reach. I told you are putting efforts towards it. You will be able to accomplish what you want to accomplish. जो आपके dreams are fulfill ज़रूर हो रहे हैं. You are within the reach. Like your dreams are within your reach. You're about to reach them. So ये भी information है. Last but not the least, we have the nature's sign. It says be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. So pile number 2, you guys are gonna see many significant messages, continuous messages throughout the days. All right, it can be repeating numbers जैसे 2 2 2 6 6 12 12, और इट कैन इवन बी जैसे कोई चीज़ है, आप वो चीज़ करने की ना बड़ी कोशिश कर रहे हो, आपने अटेम्प्ट करा, फर्स्ट अटेम्प्ट करा है ना, सेकंड टाइम अटेम्प्ट करा, हो ही नहीं पा रही वो चीज़, है ना, कोई चीज़ अटक गई,
कोई तो यू नो दैट्स अ मैसेज दैट यू आर नॉट मेंट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ. जहाँ आपको लगता है ना कि मेरे को अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है ये चीज़ करने के लिए, मेरा मन नहीं है, मेरे को ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है ये चीज़, रुक जाओ वहाँ पर. उस चीज़ को भी छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, बाद में कर लोगे और ईजिली कर लोगे. कई बार ऐसा होता है कि ना लाइक जैसे कि अब मैं भूल गई हूँ मेरे, पर मेरे साथ ये हुई है ये चीज़ कि ना मैंने किसी चीज़ के प्रति ना एफर्ट करा कि ये चीज़ हो, बट वो उस समय पर ना हुई नहीं. अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या है, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है मेरे साथ कि कोई चीज़ के लिए ना मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ कि वो चीज़ हो, पर नींद आई जा रही है, आंखें बंद हुई जा रही है, हो ही नहीं रही वो चीज़ मुझसे. तो मैं ना रुक जाती हूँ. अब अपने साथ ना ज़बरदस्ती नहीं करती, मैं रुक जाती हूँ. मैं कहती हूँ कि चलो आधे घंटे बाद देखती हूँ, अभी आंखें बंद करके मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ. और वो जो छोटा सा नैप लेके फिर वो मैं काम करती हूँ तो बहुत अच्छे से वो मैं काम कर पाती हूँ. अगर कई बार देखो जैसे आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पर परफेक्शन चाहिए और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद इस समय पर दे ना पाऊँ, वो चीज़ डिलीवर ना कर पाऊँ, रुक जाओ उस चीज़. अगर आपके पास समय है ना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आप थोड़ी देर बाद कर सकते हो, तो ज़रूर आप रुक जाओ और उसको थोड़ी देर बाद करो. पर हाँ, ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर वो चीज़ करनी ही करनी है, अभी ही करनी है, तो वो तो करनी ही पड़ेगी. पर एट टाइम्स जो है हमारी बॉडी की नेचर जो है हमें कहती है कि रुको अभी समय ठीक नहीं, अभी रुको. और हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि अच्छा ही हुआ कि हमने अपने बॉडी की, अपने माइंड की सुन ली, क्योंकि सच में ये समय ठीक नहीं था. इस समय कोई और मेरे पास देखो काम आ गया, शुक्र है मैं वो चीज़ करने नहीं बैठी, अदरवाइज़ ये काम को मैं कर नहीं पाती या ये एक्शन मैं ले नहीं पाती, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर काम में बिज़ी हो जाती. तो हर चीज़ अच्छे के लिए होता है. आप ये सोचते हो, हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स. ऑलराइट, सो लिसन टू योर नेचर ऑफ योर बॉडी, है ना. बॉडी का भी अपना नेचर है. कई बार बॉडी अपने अकॉर्डिंग, हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो रुक जाओ उस समय पर. अगर रुक सकते हो तो, अगर कोई चीज़ करनी है तो कर लो, फिर ऑप्शन नहीं. पर आपकी बॉडी आपको साइंस देती है, उन साइंस को सुनो. राइट, सो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है. आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees. All right, it can be moon, it can be Jupiter, or it can even be Saturn. All right, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का होगा. और जो साइन है जैसे कैंसर, जैसे इवन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्याश्लेषा. सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतभिषाखन, पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. सो यस, दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. Do write angel blessing in the comment section below. I also feel that Jupiter Saturn का conjunction हो सकता है आपके चार्ट में. Jupiter Saturn can be trine from each other. All right, ऐसी placements होंगी. So yeah, that was it. And do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved one. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the growth card here, number 44, or you picked this pile according to your the date of birth. Agar aapka birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है, तभी आपने इस फाइल को पिक करा है और अगेन इंट्यूटिवली पिक करा है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम यहाँ पर मेन टेरो से कार्ड्स पुल आउट करेंगे. 5 क्लियर मैसेजेस दैट यू आर मेंट टू हियर राइट नाउ. पाइल नंबर 3. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट के बारे में कार्ड्स पुल करेंगे.
Okay. So we have 10 of wands. Okay, it does shows me कि the recent times it can happen that you moved. ऐसा हो सकता है एक घर से दूसरे घर आप शिफ्ट हुए हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट हुए हो, या आप अपने घर में अपने सामान को मतलब ऐसा चेंज करो, मतलब अपने सामान को अपनी कबर्ड्स में जो चीज़ें उनको अब बदल रहे हो। मे बी अब सर्दियों के कपड़े निकाल के गर्मियों के अंदर भर रहे हो, अपने कबर्ड में जचा रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या अपना कबर्ड इन जनरल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को, जो अननेसेसरी चीज़ें थी जिनको आप यूज़ नहीं करते थे, आप उनको किसी को दे रहे हो, अपने डी क्लटर कर रहे हो लाइफ को, या मेंटली आप अगेन अपने आप को डी क्लटर कर रहे हो, चीज़ें एक पीस ऑफ पेपर पर लिख रहे हो ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार घूमे नहीं, है ना। जर्नलिंग कर सकते हो, दिस कैन हैपन। बट कहीं ना कहीं समेटा समेटी जचाना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट है। इट कैन इवन हैपन, मैनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड टू डू वेट लिफ्टिंग, या वेट लिफ्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखना है, दिस कैन हैपन। And we have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles gives me this message that you want to live a life of a party. You are seeing YouTube videos which are about party and a person who is living a very good life. एक celebrity का आप YouTube videos या vlogs देखते हो, and you feel like that they are living the best life. You feel that भाई लाइफ हो तो ऐसी हो वरना ना हो। आप काफ़ी एक रिच वेल्दी इंडिविजुअल का लाइफ देख रहे हो और कहीं ना कहीं अपना लाइफ उस पर्सन से कंपेयर करना शुरू कर दो। सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज वॉट एवर यू सी ऑनलाइन दोस मे नॉट बी सो ट्रू। ऑलराइट, और ये जैसे रीडिंग भी है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपसे जो है रेजोनेट हो, बट कोशिश तो वैसे यही है कि आपसे हर चीज़ रेजोनेट हो, आपकी एनर्जीज़ का यहाँ पर जो है आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर आए और आपको क्लैरिटी मिले। कोशिश तो ये है। बट आई जस्ट वांट टू से कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द पीपल हु यू सी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि वो 10-15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो है, आप व्लॉग्स हैं फॉर एग्जांपल, है ना, वो उससे कंपेयर हम करने लग जाते हैं अपनी आप की लाइफ को। लेटर हमें यही रियलाइज़ होगा कि भाई हमारी लाइफ बेटर है। 10 से 15-20 मिनट हम कुछ भी अच्छी चीज़ दिखा सकते हैं, पर बाकी ज़िंदगी तो हमने उस इंसान की नहीं देखी ना। तो ज़रूर जो है आप अपना डिस्टेंस रखो सोशल मीडिया से, गाइडेंस है। डू नॉट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, योर लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। पाइल 3, you may not know this or you may know this, whatever, but your life is good. It's not bad. You are a fortunate individual. You are very near and dear to God. You're loved by God. You're loved by the universe. Yeah, Nine of Pentacles यहाँ पर ये भी शो कर रहा है, many of you guys do not want to get married. Many of you guys feel like marriage is not cup of tea for me. Many of you will stay single for a lifetime. Maybe जैसे for example अभी वैलेंटाइन डेज आने वाला है और टेडी डे है, चॉकलेट डे है, पता नहीं कौन कौन से दिन हैं जो शायद आज तक आप लोगों में से किसी ने सेलिब्रेट नहीं करे। सिंगल सिंस फॉर एवर, ऑलराइट। एंड ये साल भी शायद उस तरीके से ही जाने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली उसी तरीके से। ये साल क्या है, स्पेशली ये फेब्रुअरी का मंथ इसी तरीके से जाए, या कहीं ना कहीं आप चाहते भी हो दैट यू वांट टू स्टे सिंगल। नाइन ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है ना, बैचलरहुड को ही शो करता है। लिटरली इट शोज बैचलरहुड। इट शोज एक दो दोस्त, बहुत सारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी नहीं, एक दो दोस्त, एक दो बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट्स इट। You made a best friend in your school, that's enough for life. That person is enough for life. You don't want more friends. So आपका network circle, आपका friend circle बहुत छोटा है, and it shows that you're a very secure person. Okay, and yeah, you're gonna enjoy your life. You're gonna enjoy your bachelorhood, and yeah, now you do not want a romantic relationship as well. Of course, many of you guys can be married or can be in a romantic relationship, but it does shows that you are still spending your me time, you're having that me time, or you prioritize your me time a lot. Let's pull some cards about the clarities. Let's pull some cards about the 5 clear messages which you're supposed to hear right now.
सो वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स, सेव योर मनी। ये क्लैरिटी है, सेव योर मनी, डोंट स्पेंड मनी ऐसे ही, मत अपना मनी स्पेंड करो, फास्ट फैशन पे अपना मनी मत स्पेंड करो। जो चीज़ें सिर्फ कुछ क्षण की आपको खुशी दे सकती है, कुछ मिनटों की खुशी दे सकती है, उस चीज़ पर पैसे मत खर्च करो। अपने पैसे अपनी पॉकेट में रखो, अपने बैंक में रखो। बैंक बैलेंस जितना है उतना गर्मी रहेगी अंदर, ऑलराइट। खर्च कर दोगे फिर गर्मी ख़त्म हो जाएगी। तो अपना मनी सेव करो। अभी ऐसे मौके आने वाले हैं, पाइल नंबर 3, जहाँ पर आपका मन करेगा ये खरीद लो वो खरीद लो, बट इंटरनली यू विल नो कि कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से, कुछ बेटरमेंट नहीं होने वाली इन चीज़ों से, ये चीज़ें टूट भी सकती हैं। आई शुड नॉट स्पेंड माई मनी। हाँ, आपका दिल शायद ये कहे कि मेरे को ये खरीद लेनी चाहिए, पर आपका दिमाग ये हमेशा आपको गाइड करेगा, ज़रूर करने वाला है, कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मत खरीदो। गाइडेंस भी ये क्लियर मैसेज है, सेव दैट मनी, नॉट स्पेंड दैट मनी, सेव दैट मनी, ऑलराइट। कुछ यहाँ पर ऐसी फजूल की चीज़ें आपके सामने आएगी और आपका मन करेगा लेने का, लेना नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है, सेव दैट मनी। Then second clarity, we have justice card. Justice is going to be served finally. If you felt कि मेरे को टीचर ने ना गलत बात पर डांटा, मेरी तो गलती भी नहीं थी, मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरे बॉस, मेरे कोवर्कर्स ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या मेरे को मेरा पे चेक नहीं मिला अच्छा राइट अमाउंट का, या मेरे को बोनस नहीं मिला, या मेरे को वो प्रमोशन नहीं मिला, फाइनली जस्टिस विल बी सर्व। कुछ कंपनसेशन आपको उसका ज़रूर मिल रहा है, ऑलराइट। कुछ यहाँ पर आपको जस्टिस ज़रूर सर्व हो रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। देन तीसरी क्लैरिटी, वी हैव द टावर कार्ड। टावर कार्ड वी सी कि कोई सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज है, पर मैं एक और इसके लिए कार्ड पुल करती हूँ। क्लैरिटी फॉर द टावर कार्ड, क्लैरिफिकेशन फॉर द टावर कार्ड। तो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जो सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ का होना, ऑलराइट, किसी सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ का एंड होना, या कोई सडनली कोई चीज़ का शुरू होना, वो आपके पैशन से रिलेटेड है, वो आपके शौक़ से रिलेटेड है। ऐसा हो सकता है सडनली, वेरी अनएक्सपेक्टेडली you get name and fame. You were just posting on Instagram or YouTube about your music and suddenly you got million of views, which is possible in this day and age. You were just doing things for fun, but उसके कारण आपको recognition मिल गया एकदम से, and you're shocked to your core, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में और मनी आता है, या लाइफ में बेटरमेंट होना शुरू होती है, कुछ तो होता है अच्छा, पर आपके शौक़ से, अपने पैशन से रिलेटेड है। तभी कहते हैं कि अपना शौक़ कभी मत छोड़ो, अपना जो चीज़ आपको खुशी देती है ना उसको कभी मत छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शौक़ से भी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, शौक़ को मत छोड़ो। ये गाइडेंस भी है। और बाकी कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके शौक़ से रिलेटेड उधर गुड न्यूज़ आ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है। देन वी हैव द फोर्थ क्लैरिटी फॉर यू, पाइल नंबर 3, इट्स द 6 ऑफ swords, which shows ki unexpected travel unexpected travel is going to happen. And if you were feeling that I was unable to move on from certain things in my life, किसी ने आपको कुछ कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, कुछ गलत हो गया, तो फाइनली आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर पा रहे हो। फाइनली यू आर एबल टू forget and move on, which is a big thing, and this is a guidance as well that you need to forget and move on, and it's a high time to do so। और आप फाइनली करते हुए नज़र आ रहे हो, forget move on। और इन जनरल भी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 6 days from now, या within 6 weeks। And we have the 5 of cup, last but not the least, but the 5th clarity जो आ रही है आपके लिए, वो यही है कि आप सोचते हो कि भाई मेरे पास ना सिर्फ ये चीज़ें हैं, सिर्फ I have achieved small amounts, or I have achieved very less things in my life. There are things which I didn't achieve. काश मेरे पास वो चीज़ें होती है ना। तो you're आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, आपको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। ऑलराइट, सो you should be happy for what you have,
डू नॉट क्राई अबाउट कि जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं. ऑल राइट, सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, बिकॉज ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास है. यू आर लिविंग अ मच बेटर लाइफ फ्रॉम मैनी पीपल इन द वर्ल्ड. पाइल 3, योर गाइज आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल. सो डोंट बी अ ब्रैट एंड बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत आपने चीज़ें अचीव भी करी है. यू आर नॉट अ फेलियर. पाइल नंबर 3, यू गाइज आर द पीपल who are gonna get success or already successful, who are already following the path of success. You guys are not the people जो beaten path follow करेगा. You guys are the people who are going to follow the unbeaten path. You guys are the people who will become inspiration for many. आप ओवर अचीवर हो पाइल 3. तभी आपको एक दुख होता है कि मैंने ये 10 चीज़ें अचीव कर ली, मेरी एक चीज़ ये रहेगी अचीव करनी, उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाता है. तो कहीं ना कहीं ओवर अचीवर हो या अपने माँ बाप को बहुत इम्प्रेस करना चाहते हो, माँ बाप ऐसा लगता है कि मैं जो करता हूँ, जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये बात ठीक नहीं है. हाँ, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है. पर भाई आप जो करते हो वो मेनली आप अपने लिए करो. आपका ये होना चाहिए मेरे को एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना. माँ बाप जो हैं वो भगवान थोड़ी ना है. कह देते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप है, पर सच तो नहीं है. भगवान जो है वो हमारे माँ बाप नहीं हैं. माँ बाप तो खुद भगवान के बच्चे हैं, तभी वो भी पूजा पाठ करते होंगे, तब वो भी भगवान में मानते होंगे. अगर भगवान वो खुद होते तो वो भगवान की पूजा थोड़ी ना कर रहे होते या प्रे थोड़ी ना कर रहे होते. कभी देखा है, कभी सुना है भगवान की पूजा कर रहा है? कभी नहीं सुना होगा ना देखा होगा. तो माँ बाप बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारी लाइफ में. उनका बड़ा रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आदर, सम्मान हमें करना चाहिए. पर बाकी हमें अपनी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए. हमें बस दूसरों को इम्प्रेस करने में अपनी ज़िंदगी नहीं निकालनी है. ये भी एक स्ट्रॉन्ग मेजर गाइडेंस है. पाइल नंबर 3 आपके लिए 5th मेजर गाइडेंस और क्लैरिटी इज स्टॉप इम्प्रेसिंग अदर्स. डू नॉट बी अ पीपल प्लीजर. ऑल राइट, इट्स नॉट गुड फॉर योर सैनिटी. You can go insane by impressing other people. आप अपने लिए चीज़ें करो, आप अपनी खुशी के लिए चीज़ें करो, ये गाइडेंस है. Then we have integrity. It says live with integrity and honor. Be true to your values. एक ये integrity कार्ड ने it's also giving me this message that जहाँ पर भी देश की बात आती है ना, हमारे नेशन की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, वहाँ आपको ज़रूर एफर्ट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि भाई मेरे को मेरे देश के लिए कुछ अच्छा करना है. ये पेट्रियाटिज़म होना चाहिए. देश के लिए चीज़ें करनी है. ऐसे हाथों का क्या फ़ायदा जो देश के लिए नहीं जो है कुछ कर पाए, है ना. तो ऐसे स्किल का क्या फ़ायदा जो देश के लिए कुछ ना कर पाए. तो जो हमारा मदरलैंड है, जो हमारा देश है, उसके प्रति आपको ज़रूर जो है पेट्रियाटिज़म होना चाहिए और उसके प्रति आपके अंदर एक शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए. देश को आगे बढ़ाने की शुभकामना, शुभ भावना होनी चाहिए. कि ये भी गाइडेंस है. ऑलराइट, देन वी हैव courtesy. It says show courtesy and respect in all interactions. Kindness is key. Politeness, respect, manners. तो आपके अंदर already pile number 3, you guys have regal royal manners in you. You guys are already very polite, but it can happen कि आपकी politeness का दूसरे लोग गलत फ़ायदा उठा जाते हैं. तो वहाँ पर जो है आपने strict होना है. जहाँ पर strict रहना है वहाँ strict रहो, जहाँ politeness दिखानी है, polite होना है, वहाँ polite रहो. Alright, so ये आपके लिए guidance है. Although you are someone who is very kind, ऑल राइट, यू वॉन्ट टू डू गुड फॉर अदर पीपल. ये आपके अंदर है अंदर से कि भाई मुझे दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है. ये है आपके अंदर ये चीज़. सो दैट्स ग्रेट. एंड वी हैव द क्रिएटिविटी कार्ड. इट सेज एक्सप्रेस योर सोल्स एनर्जी.
दैट्स वंडरफुल कार्ड। यहाँ पर यही गाइडेंस है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को मत छोड़ो। जो सोल है वो इतने सारे लाइफ टाइम्स वो ले चुकी है, इतने बर्थ्स वो ले चुकी है, और हर बर्थ में उसने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ स्किल सेट आपकी सोल पास्ट लाइफ से लेकर आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग गाना गाने में बहुत अच्छे हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो आप में से काफ़ी सारे लोग, आप में से काफ़ी सारे लोगों में नॉलेज बहुत हो सकता है। तो उस नॉलेज का, उस आर्ट का जो है फ़ायदा ज़रूर करो, मतलब उस आर्ट को आप ज़रूर अपने यूटिलाइज़ करो। वो द थिंग्स विच यू डोंट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो अपनी आर्ट को ज़िंदा रखो, जो आपके अंदर स्किल है उसको ज़िंदा रखो, वो स्किल को ज़रूर अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करो, अदरवाइज यू विल लूज़ इट। ऑलराइट, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, पाइल नंबर 3, सो यूज़ दैट क्रिएटिविटी। Then it says spiritual technology, it says expand your imagination and share your vision. So it does shows कि you should use your creativity in terms of टेक्नोलॉजी। वीनस राहु का कंजंक्शन हो सकता है पाइल नंबर 3 आपके चार्ट में, वीनस राहु या ट्राइन हो सकते हैं एक दूसरे से, जो कि शो करता है आप में से काफ़ी सारे लोग फिर थंबनेल बहुत अच्छे बना सकते हो। जो यूट्यूब पर थंबनेल होते हैं ना, सुंदर सुंदर बनते हैं, अट्रैक्टिव, है ना, आप वो बहुत अच्छे बना सकते हो। अगर आप वेबसाइट बनाते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हो, तो वेबसाइट को इतना सुंदर, इतना वाइब्रेंट कलर्स वाला बनाओ कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा सभी को। यू हैव दैट स्किल विद इन यू। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन यही शो करता है। लेट्स से राहु असेंडेंट में है तो वीनस 5th या 9th हाउस में हो, तो ये वीनस एंड राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे आपके चार्ट में। पाइल नंबर 3 वीनस राहु या वीनस राहु का कंजंक्शन हो। वीनस आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी है, कलर्स है वीनस, और राहु न्यू एज टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर्स है। राहु सोशल मीडिया भी है जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब। राहु एक्सपेंशन है और वीनस क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी का एक्सपेंशन है आपके अंदर, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर। मैनी ऑफ यू कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, एक्टिंग, अगेन आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, और उसको आपको सोशल मीडिया पर दिखाना चाहिए। गाइडेंस है सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने वो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी यही इन्फॉर्मेशन दी थी, टावर कार्ड के साथ भी यही इन्फॉर्मेशन दी थी। लेट्स से आप गाना गाने में बहुत अच्छे हो, आप वो गाना गाते हो, उसको अपलोड करते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, एंड सडनली आप अगले दिन उठते हो सुबह एंड यू रियलाइज़ कि आपके उस पर मिलियन व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ़ करी है, आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, है ना, उससे सडनली आपको नेम, फेम, मनी इवन गेन हो, तो ये चीज़ें होगा। तो यूज़ योर क्रिएटिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, यानी सोशल मीडिया, न्यूज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ये गाइडेंस है। सो दैट्स गोना बी वेरी वंडरफुल फॉर यू, आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देगा। एंड वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, सो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आओ। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को सिर्फ यही चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी, सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज़ करूँगा या करूँगी, नहीं, बी फ्लेक्सिबल। आपके पास मतलब आपके पास हर एक स्किल सेट होना चाहिए। आप लेट्स से पढ़ाई में बहुत अच्छे हो पर खाना बनाने में अच्छे नहीं हो, गड़बड़ है ना फिर तो। आप पढ़ाई से अपना पेट थोड़ी ना भर सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन हायर समवन टू कुक फॉर यू, बट फॉर द मीन वाइल कुक फॉर योर सेल्फ, डेवलप अ culinary स्किल इन यू, है ना, कोई तो डिश आना चाहिए अच्छे से, है ना। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, सर्वाइवल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे हो ये काफ़ी नहीं। सो बी फ्लेक्सिबल विद योर स्किल सेट, लर्न न्यू थिंग्स, ये गाइडेंस है। एंड इट सेज मिरेकल्स, सो मिरेकल्स कार्ड में है, कार्ड पर है रेनबो, वाटरफॉल। सो मिरेकल्स इज ऑन द कार्ड, द थिंग्स विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दे आर गोना हैपन। वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, वो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अब वही आप एग्जाम्पल ले लो मिलियन व्यूज़ वाला, या अपनी क्रिएटिविटी को आप जब शोकेस करते हो ऑनलाइन, तो सडनली आपको उसमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत उससे मनी भी मिल सकता है ना, नेम फेम मिलता है, तो सडनली सम मिरेकल इज गोना हैपन। And I would say that too, it can happen within 4 weeks. Then we have, last but not the least, come together card. It says fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done.
सच ए वंडरफुल कार्ड इट इज़। यहाँ पर यही शो कर रहा है कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हर चीज़ हम खुद नहीं कर पाते कई बार इसीलिए ले लेनी चाहिए मदद। ऑलराइट, मदद लेने से कोई हम छोटे बड़े नहीं होते, मदद लेते हैं तो हमारा काम जल्दी होता है और नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी आप क्रिएट करते हो दूसरों के लिए, है ना। आप लेट्स से आपका बिजनेस है एंड यू वांट टू स्प्रेड दैट बिजनेस, सो यू स्टार्ट टू हायर अदर पीपल, यू टेक देयर हेल्प बट यू ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इट्स अ गुड थिंग। सो मोर द मेरियर, हेल्प लेनी है ज़रूर लो, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये गाइडेंस है। एक साथ ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, इफ़ यू आर इन जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एक साथ इकट्ठे आप काम कर रहे हो और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। सो ग्रुप में अगर आपको जाने का मौका मिलता है, कहीं अगर घूमने फिरने भी किसी ग्रुप में जाने का मौका मिलता है, चाहे वो स्कूल से वो ग्रुप जा रहा है, कॉलेज से वो ग्रुप जा रहा है, वर्क प्लेस से वो ग्रुप कहीं घूमने जा रहा है, या आप ट्रैवल करना चाहते हो, सोलो ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल विद दो स्ट्रेंजर्स। जैसे फीमेल्स का ग्रुप जाते हैं ना, 10 से 12, 15, 20, 25 ऐसे फीमेल्स का ग्रुप जाते हैं। यू डोंट नो कि वो कौन आपके साथ होंगी, बट उस ग्रुप में जाते हो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, परिवार के साथ नहीं पर स्ट्रेंजर्स के साथ, अगेन ज़रूर जाना चाहिए। उस सोलो ट्रिप पे ज़रूर जाना चाहिए। वैसे सोलो तो कहने का है, 15-20 लोग हमारे साथ हैं जिनको हम नहीं जानते, बट यू स्लोली बिकम फ्रेंड्स विद देम, सो यू विल एन्जॉय योर टाइम देयर। ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहिए। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग एंड या दैट वाज एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो मैंने कहा वीनस राहु कंजंक्शन है, वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम राहु, ये हमने बात करी। और वीनस आत्मा कारका हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज। इट कैन बी वीनस और इट कैन इवन बी मर्क्यूरी, इट कैन इवन बी सन। ऑलराइट, एंड आपके चार्ट में जैसे एरीज साइन हो गया, टॉरस हो गया, जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, लिब्रा हो गया, ये प्रोमिनेंट हो गए। इन साइंस में प्लांट जरूर प्लेस होंगे। तो एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है, टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा स्पेल करता है, जेमिनाई में आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी स्पेल करता है, हस्ता, चित्रा, चित्रा स्पेल करता है, लिब्रा में श्रावण, चित्रा में लिब्रा साइन में चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र। तो इन साइंस इन नक्षत्र में ज़रूर प्लांट्स प्लेस होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। जैसे रोहिणी एंड लिब्रा साइन ऑफ चित्रा नक्षत्र, दीज आर वेरी क्रिएटिव नक्षत्रस। स्पेशली रोहिणी पर्सन इज समवन जो आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जुपिटर भी अगर रोहिणी में है या राहु भी अगर रोहिणी में है या कोई और प्लैनेट अगर रोहिणी में, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देगा क्रिएटिव चीज़ों के प्रति, म्यूज़िक के प्रति। मृगशिरा इज ऑल्सो नक्षत्र जो शो करता है अर्ली इन लाइफ, आप लोगों को फॉलो करो सोशल मीडिया पर, लेटर इन लाइफ लोग आपको फॉलो करेंगे सोशल मीडिया पर। एंड रोहिणी, मृगशिरा पीपल, यू गाइज, मतलब आपका आत्मा कारका अगर इन नक्षत्र में है तो यू गाइज विल बी स्ट्रॉन्ग डेवोटीज ऑफ शिव। शिव की पूजा करोगे, शिव टेम्पल जाओगे, बहुत शिव से कनेक्टेड होगे, ये होगा। ऑलराइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। जो मैंने अभी नक्षत्र बताया उनमें प्लांट जरूर प्लेस होंगे D1, D12 या D9 या D10 दशांश चार्ट में। Alright, so yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.